2016 ऑनवर्ड्स मैंने दो प्लेटफॉर्म्स फॉलो किया था, एक इनसाइट्स और सिविल्स डेली। इनसाइट्स में क्या है कि एडिटोरियल्स वो सारे कवर नहीं करते। सिविल्स डेली में क्या है कि कुछ भी होगा एडिटोरियल वो कवर करेंगे। एंड मैंने एक पॉइंट के बाद न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़ दिया था, क्योंकि सिविल्स डेली से क्या हो रहा था कि मेरे को पॉइंट वाइज उस एडिटोरियल के मेन पॉइंट्स मिल रहे थे, तो मेरा एफर्ट कम लग रहा था। तो सिविल्स डेली एक करंट अफेयर्स के लिए मैं रेगुलरली फॉलो करता था। ये मेरा नोट मेकिंग का एक स्टाइल था कि मैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स फॉलो करता था, rather देन मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स नहीं फॉलो करता था। सेकेंडली, 2016 में ओपन जब प्लेटफॉर्म था, तब 1234 जीएस 1234 के डेली क्वेश्चंस आते थे, मैं वो अटेम्प्ट करता था। पोस्ट नहीं करता था मैं प्लेटफॉर्म पे, बट बहुत लोगों के जो आंसर्स आते थे वो मैं पढ़ लेता था। और कहीं जगह मतलब सिविल डिली की तरफ से रिव्यू भी होता था, या लोग एक दूसरे के क्वेश्चंस रिव्यू करते थे, तो मैं वो पढ़ लेता था। 16 में दैट हेल्प मी। 18 में मैंने कुछ करंट अफेयर्स के लिए फॉलो किया था, आंसर राइटिंग के लिए फॉलो नहीं किया था। 20 में मैंने कांटेक्ट किया था सजल सर को, और मेरे 250 प्रोबेबल क्वेश्चंस, मतलब वो मेरे को लगता है कि काफी इफेक्टिव रहे थे, क्योंकि दो या तीन क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए थे, और मतलब काफी रिलेटेड टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स। मतलब मेरा काम इजी हो गया था कि मुझे, वो एक था कि मैं आउट ऑफ टच हो गया था 18 के बाद, तो मुझे डर था कि मेरा करंट अफेयर्स मिसिंग है। तो 250 प्रोबेबल टॉपिक से ये थोड़ा इंश्योर हो गया कि जो टॉपिक्स मेरे से मिस हो गए इंडिविजुअल लेवल पे वो कवर अप हो गए, क्योंकि किसी प्लेटफॉर्म ने मेरे को डायरेक्टली रेडीमेड मटेरियल दे दिया था। वो टॉपिक था और 2 या 3 पेज में उसका एक्सप्लेनेशन था। तो मतलब एग्जैक्टली मैं उसमें से 250 वर्ड्स का आंसर लिख सकता था। बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत कम नहीं था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily. Hello everyone, welcome to the Unheard series of Civils Daily, and today we are having a very special guest with us, the All India rank 132, Mr. Lakshay Kumar, and I think he's a known face by now. तो अपने इस इंटरेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं टू नो हाउ लक्ष्य हैज qualified this exam twice and made this clear that this exam can be consistently qualified if you are having a right process and right strategy to excel this exam. So hello and welcome, Lakshay. Thank you so much. So how are you doing in general, Lakshay? I'm feeling very good. I'm currently undergoing training at my respective academy. I had got selected in Indian Railway Account Service, so I'm currently in Hyderabad enjoying my training days. Okay, Lakshay. So like most of the people who clear the exam for the first time, they have their own set of experience when they see the PDF, and in the PDF, if they see their name, it's a altogether a new kind of elation and joyful experience. It for you, it's like second time. So second time mein how it has changed your overall life experience? Is it anything which you want to share here? Had my name not been there in the PDF second time, I would have been disappointed. But since it was there, I was quite content. But not the excitement level was much lesser than the first time. So I feel that I'm happy, but it is not like that I'm overly overwhelmed or I am out of something. I am feeling normal, and I'm content with it. Brilliant. But so the now next question is that in this very paper, it has been a consistent effort from your side. If we see, एक साल के बाद दूसरे साल भी you have improved your performance. So what has been your mantra for this in general consistent performance? I've tried to keep things very simple. I have ensured consistency. I have focused on answer writing. These are the few key areas which I think the aspirants lack, and therefore they don't get selected the first time, or they can't improve when they give consecutive attempts. Okay, so we can talk about how you kept yourself consistent throughout it in the later part of our discussion. So I'll start with a kind of background where you can tell us about yourself, how your like childhood experience with observational learning has been, or kaise it has turned into this aim of clearing UPSC or civil services examination, and ultimately getting into this IRAS services as a trainee officer. So my father was in government servant, and I used to visit his office quite frequently.
because my elder brother was pursuing CA and nobody was at home to take care of me. So my father used to take me along with himself to his office. So I had seen this government culture from my childhood days, and it motivated me to take up this career as an future option. Secondly, my brother is also in private sector. So my father said there will be a balance if one of them is in government sector. It will provide balance to the family. So these were the main factors that provided an inclination towards the same. UPSC was one of the aim, not entirely. I had given other government exams as well. I would not take it as an ego thing that I will not give any other exam apart from UPSC. I've given bank PO exams, state level public service commission exams, any exam. In fact, I got selected in PFRDA through such an exam because I was giving all the exams that were available. Okay, so it means like you have not fixed yourself कि अगर UPSC नहीं तो कुछ नहीं. You made it simple. कि Yeah, it is. I think I look it at as a job option only. Career also, but at the end of the day, it is an exam only. I was working in PFRDA. I was getting a good salary. I was happy. Had I fixed it as an aim only, UPSC only, then and wasted 5 to 6 years over it and not being employed anywhere, that would have caused harm to me and my family as well. So I didn't want that type of situation. So UPSC was one of the aims. And Alright. बहुत लोगों से मेरी डिस्कशन भी हुआ था, तो सब लोगों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है. तो ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी स्टेयर्स होती हैं. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोगों को मिलता है. तो अगर आप कहीं और भी एम्प्लॉयड हो जाते हैं, देन यू कैन साइड बाय साइड गिव एग्जाम्स. अगर आपने एक अटेम्प्ट दे लिया है तो बेस तो तैयार हो जाता है. उसके बाद यू कैन प्रिपेयर अलोंग साइड विद द जॉब. दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी. 2016 में आई हैड क्लियर्ड ऑल द stages of this examination. I went till interview stage. So my base was laid down. In 2018, when I gave that exam along with the job, when I was working in PFRDA. So it made things simpler because I had limited time, limited energy. So I focused on limited things and covered the syllabus. I didn't refer many resources, and that is what worked in 2018 for me. Okay, because you have said, and as far as I know from the background you have, and we had a discussion earlier, so you're from commerce background, and of late you also know that there are a very limited number of students who are appearing with commerce background in this very examination. Even if they do appear, so they do not come up with any like commerce specific optional. So is there any specific reason to that, or how can like these students who are opting for the commerce in their +2, they can come and join this prestigious examination as their life career? I think there is a fear factor. वो एक मार्केट बना हुआ है कि कॉमर्स ऑप्शनल इज डिफिकल्ट, मार्क्स नहीं आएंगे, बहुत लेंदी है. ऐसे इश्यूज लोगों के माइंड में क्रॉप अप करते हैं और वो सडनली किसी और के एडवाइस पे कोई ऑप्शनल चूज कर सकते हैं. एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. इन 2016 आई गेव इट विद हिस्ट्री ऑप्शन. There were 2 questions in mains that I had no clue about. I couldn't write anything. There was some question on some book which I had no idea about. So I had left around 20 to 30 marks in my optional paper. And in the interview stage as well, one of the board members asked me a quote in some different language which I had no clue about because history was not my background. So मैं comfortable feel नहीं कर रहा था. Then I realized कि इससे नहीं हो पाएगा मेरे से. और ये एक हेजिटेंसी और भी एस्पिरेंट्स में होती है कि वो अपना ऑप्शनल स्विच नहीं करते डिस्पाइट हैविंग लो स्कोर्स फॉर एटलीस्ट मतलब 2 years भी अगर आपके लो स्कोर्स हैं तो आपको अपना ऑप्शनल चेंज करना है. कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ऑप्शनल से अगर आप आओगे तो कुछ ज्यादा आपको वेटेज मिल रहा है या कुछ है. तो आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स इन 2018. वो फियर फैक्टर खत्म हो गया था बिकॉज आई गॉट एम्प्लॉयड समवेयर. तो आई हैड नथिंग टू लूज. उसके बाद मैंने कॉमर्स का कोई कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी किया क्योंकि मुझे पता था आई हैव गिवन मतलब आई हैव डन एमकॉम एज वेल. तो आई हैव गिवन 5 years टू दिस स्ट्रीम मतलब कॉमर्स को. मुझे ये पता था कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल क्लूलेस.
आई वुड राइट समथिंग अबाउट इट। तो एक वो सेटिस्फेक्शन है कि पेपर मिस नहीं हुआ, आप पहले ही रेस में पीछे नहीं हो गए हो। तो वो दैट वर्क फॉर मी इन 2018 बिकॉज कॉमर्स में मेरा 293 स्कोर आया था एंड Okay. दैट पुश्ड मी इनटू द लिस्ट। 2016 में जिस चीज की वजह से आई गॉट 270s के अराउंड आया था हिस्ट्री में, आई वाज आउट ऑफ द लिस्ट बाय 19 मार्क्स, और वही डिफरेंस हुआ कि कॉमर्स में मेरे मार्क्स ज्यादा आए और मैं इनसाइड द लिस्ट था। और इंटरव्यू में भी कॉमर्स स्पेसिफिक जब क्वेश्चंस आए थे तो आई वाज रियली कंफर्टेबल, वो नर्वसनेस खत्म हो गई थी कि क्योंकि हिस्ट्री जैसे कोई भी ऑप्शनल है, आप उतना कवर नहीं कर सकते अगर आपका बैकग्राउंड नहीं हो तो। और ये चीज इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होती है, कहीं ना कहीं वो कोई क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत बेसिक होता है और आपको नहीं आता है। ओके, सो आई थिंक ये एक बहुत इंसाइटफुल पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल सिलेक्शन, क्योंकि लोग इसमें परेशान रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे हैव दिस ट्रबल कि व्हाट शुड बी माय ऑप्शनल। तो इट इज बेटर इफ यू कैन डू विद द ऑप्शनल व्हिच इज योर बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में। आई थिंक अगर आप उसमें काम कर सकते हो तो कीप दिस क्लैरिटी, जैसे लक्ष्य के पास रही है, दैट ही ऑप्टेड फॉर द ऑप्शनल जो बैकग्राउंड से था, एजुकेशनल बैकग्राउंड से था, एंड देन ही मूव अहेड विद दैट। और इम्प्रूवमेंट भी ड्रास्टिक है। सो 20 मार्क्स सिविल सर्विसेज एग्जाम में बहुत बड़ा एक पुश है। इट इट कैन मेक योर लाइफ एंटायरली डिफरेंट। तो सब कुछ बदल सकता है। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि टू हैव क्लैरिटी व्हाट ऑप्शनल यू कैन हैव। ठीक है लक्षित, अब One more thing I would like to add. श्योर। For commerce people who want to opt commerce as an optional, I think they should go ahead with। एक दो साल में स्कोर थोड़ा कम हुआ है इस बार, जैसे मेरा 239 स्कोर है, बट आई वुड टेक इट एज एन मतलब एक्सेप्शन वाला ईयर्स है। कॉमर्स काफी हाई स्कोरिंग है, जस्ट दैट देयर शुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर इट। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि थ्योरी पार्ट ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। और जनरली एक परसेप्शन रहता है कि कॉमर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट है, तो प्रैक्टिकल पार्ट को इतना आप वो टाइम देते हैं और वैल्यू नहीं आता है। बट आप देखेंगे थ्योरी पार्ट को आप ज्यादा वैल्यू दें और टाइम दें तो आपके मार्क्स ज्यादा फ्रेश होते हैं। तो कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग आ रहे हैं, आई वुड लाइक टू सेंड देम अ मैसेज कि मतलब यू कैन ऑप्ट फॉर इट। आप जरूरी नहीं है कि ऐसे ऑप्शनल लें जो आपका बैकग्राउंड नहीं है या जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है और एंजॉय दोनों करना है। अगर ये बर्डन बनने लग गया तो बहुत सारे लोगों के ऐसे अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएंगे ऑप्शनल की वजह से। तो अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है तो टेक दैट रिस्क और अपने नेचुरल ऑप्शनल के साथ जाएं, और इट माइट वर्क बिकॉज रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो रिटर्न्स भी अच्छा आता है। ब्रिलियंट। सो थैंक्स फॉर लाइक थ्रोइंग लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी डार्केस्ट माना जाता है, या फिर इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ डिसीजनल पैरालिसिस, इंडिसाइसिवनेस क्रिएट करता है एस्पिरेंट्स में कि ऑप्शनल क्या हो, कैसे चूज करें। तो ये तो हुआ कि लाइक यू हैव टेकन एंड यू हैव चेंज द कोर्स, बट तैयारी करते हुए देयर मस्ट हैव बीन सेवरल चैलेंजेस व्हिच यू हैव फेस्ड और यू मस्ट हैव फेस्ड। तो वो चैलेंजेस क्या थे? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू हैव ओवरकेम दोस चैलेंजेस। सो दीज आर द टू थिंग्स, प्लीज। इनिशियली आई वाज डिपेंडेंट अपॉन माय फ्रेंड, वो मुझे गाइड कर रहा था, वो जो मुझे बताता था मैं पढ़ लेता था। मैंने अपना माइंड कभी अप्लाई नहीं किया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने आज तक सिलेबस नहीं खोल के देखा होगा जीएस 1 2 3 4 का। तो फर्स्ट थिंग है लैक ऑफ गाइडेंस है। आपको कोई सब आपको अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं, आप किसी एक को फॉलो नहीं कर रहे, सबको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर इज नो 100% कवरेज ऑफ सिलेबस, कभी हो ही नहीं सकता है। तो लिमिटेड एफर्ट्स के साथ लिमिटेड टाइम में हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, लिमिटेड रिसोर्सेज रेफर करें। एक ही सब्जेक्ट को हम तीन तीन चार चार जगह से पढ़ रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। आई डोंट हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट इन पॉलिटी और ज्योग्राफी, सो आई कैन रीड बेसिक बुक्स की। लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ लिया है एंड दैट इज मोर देन एनफ। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा साथ के साथ, एंड आई विल चेक कि मैंने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिमिलरली मेंस के लिए भी मैं जो करंट टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ उस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, किस वे में पूछ रहा है और मुझे कैसे आंसर करना है। जरूरी नहीं है मेरे पास इतने ज्यादा बंडल ऑफ नोट्स हो और मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लिमिटेड नोट्स के साथ ज्यादा मार्क्स आते हैं क्योंकि लोग कम पढ़ते हैं और वो रेप्लिकेट कर पाते हैं एग्जाम्स में। मेन पॉइंट है एग्जाम में रेप्लिकेट करना। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे या आपके पास ओवरफ्लो ऑफ नॉलेज है तो दैट विल अफेक्ट यू एडवर्सली ओनली, इट कांट हेल्प यू, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे 250 वर्ड्स में ही लिखना है।
सेकेंडली सेकेंड चैलेंज था आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग में लोग क्या करते हैं कि प्री तक दे विल एंटायरली स्टडी, प्री के लिए लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ेंगे एंड दे विल कम फॉर मेंस प्री क्लियर होने के बाद, और देन स्टार्ट राइटिंग। ये अप्रोच कभी भी आपको क्लियर नहीं कराएगी मेंस। मतलब यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन आंसर राइटिंग। आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डेली लिखिए और ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर लिखिए। अगर आप अपने 3 महीने बाद वही आंसर्स रीड करें तो और आपको हंसी आ रही है तो इट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग। ये एक बेंचमार्क है। बहुत लोगों को ये डर रहता है कि मेरे आंसर्स कोई चेक नहीं कर रहा। कोई नीड नहीं है इनिशियली, आप लिखते जाइए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट है। थर्ड पॉइंट एसे राइटिंग था कि मेरे एसे में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, जस्ट बिकॉज कि मैं मेंस प्री के बाद मेंस में लास्ट में 1-2 महीने में 2-4 एसेस लिख के जाता था और वो कभी भी वर्क नहीं करता। एसेज आप बाई वीकली, मैं मेरे को वीकली पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो बाई वीकली आप लिखिए। महीने में 2 एसेस, एक एट मतलब जो फिलोसफिकल एसे है और एक जो नॉर्मल एसे है वो लिखें। टॉपर्स की वीडियोस देखें, उन्होंने प्रीवियस ईयर एसेस को कैसे अटेम्प्ट किया है, किन किन डायमेंशंस में खोला है, वो वर्क कीजिए। ऐसे बहुत स्कोरिंग है, ऐसे और एथिक्स, इनके लिए अगर आप स्पेसिफिकली वर्क करेंगे तो इनका रिटर्न काफी ज्यादा है। अगर ऐसे में आप 140 प्लस कर गए या 130 प्लस कर गए तो आपका काफी सिलेक्शन ऑलमोस्ट वो हो जाता है, बाकी आप कंसिस्टेंटली नंबर ले आए तो। सेकेंड थिंग, लोग बहुत ज्यादा एक टॉपिक को अटेंशन देते हैं। जैसे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने पॉलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, यही पढ़ लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको हर टॉपिक को कंसिस्टेंटली टाइम देना है। आप डिवाइड करिए, दिन को भी डिवाइड कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, जो आपके लिए वर्क करे, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। किसी के लिए डेली टारगेट्स सही रहेंगे, किसी के लिए वीकली टारगेट्स सही रहेंगे, और कोई भी टारगेट्स मीट नहीं करता, मैं ये भी बताता हूँ। जस्ट टारगेट सेट करने के लिए होते हैं कि हम उसका 60-70% भी अचीव कर लें तो हो जाएगा। और एक डर हटाएं कि ये ना एग्जाम ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम कॉलेज में एग्जाम देते थे तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते थे, इसमें भी यही करना है। पहले जाके ये तो देखें, आप स्टार्टिंग प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ये देखें ना कि क्या पूछ रहे हैं। अगर आप उसको एज अ पेपर देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हो नहीं सकता। काफी लोग इस फील्ड में आ जाते हैं बट उनको सेल्फ बिलीफ नहीं होता कि हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि बहुत लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है सिलेक्शन की। एट द एंड ऑफ द डे 800 पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड एवरी ईयर आउट ऑफ 5 लाख पीपल हु आर अप्लाइंग और सिटिंग फॉर द एग्जाम। तो वो उस रेशियो में कम है, क्योंकि पोस्ट कम है इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है, ना कि एग्जाम पैटर्न बहुत डिफिकल्ट है या क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे हैं जो बिल्कुल किसी को आते नहीं है। ऐसा नहीं है। एग्जाम है, एग्जाम की तरह ही ट्रीट कीजिए। उसका एक सिलेबस है, सिलेबस खोलिए, उसे पढ़िए, उस पे नोट्स अच्छे से बनाइए, लिमिटेड नोट्स होने चाहिए, उनको रिवाइज कीजिए। मेरे को याद है कि मैंने 2016 में क्या गलती की थी कि मैंने एक ही कॉपी में जीएस 1 2 3 4 के सारे आंसर राइटिंग किया था। जब वो ब्रेक मिला मुझे जीएस 1 और 2 के बीच में, देन आई हैड टू फ्लिप पेजेस 3 4 के भी। देन 18 में मैंने वो चीज रेक्टिफाई किया। मैंने जीएस 1 2 3 4 का अलग अलग नोटबुक्स था कि फिर जब जीएस 2 का पेपर बचा है तो खाली मैं वही पढ़ रहा हूँ। सिमिलरली 3 4 का भी हुआ। वो चीजें आप जब एक बार एग्जाम साइकिल दे के आएंगे, पूरा एग्जाम साइकिल दे लेंगे ना, तो आपका डर खत्म हो जाएगा कि कहाँ है। अब अगर आपने इंटरव्यू कभी नहीं दिया तो लोग आपको बोलेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे यूपीएससी बुलाता है, और जनरली मैंने आज तक नहीं देखा। अब वो कोविड की वजह से चेंज हुआ, कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो वो सब चीजें अगर मतलब माइंड से एक वो आपका रिलक्टेंस या हेजिटेंसी रिमूव करेंगे ना कि आप नहीं कर सकते, वो चीज जिस दिन खत्म हो गई तो आपका आधा फियर खत्म हो गया। फिर आपको बस पढ़ना है और लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। ओके, तो थोड़ा सा इसको मैं एक बार ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। इट्स लाइक कि जैसे यू मस्ट हैव अ काइंड ऑफ गाइडेंस। सेल्फ स्टडी तो मस्ट है, बट क्या करना है, किस एक्सटेंट तक करना है, इसके बारे में यू मस्ट हैव गाइडेंस। सेकेंड पॉइंट विच यू वांटेड टू रेज कि हर पेपर की एक अलग स्ट्रेटेजी है, प्री के लिए अलग है, मेन के लिए अलग है। तो उसके हिसाब से यू हैव टू वर्क। जहाँ आंसर राइटिंग की जरूरत है, डू इट। जहाँ ऐसे पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यू नीड टू डू इट। तो सबको उसकी स्पेस देनी है। सिमिलरली
इनफैक्ट इवन इन वन पेपर, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो देयर हैज टू बी गिवन प्रॉपर वेटेज, कि हर सब्जेक्ट को वेटेज दिया जाए, किसी को ओवरडू ना किए करे, इनफैक्ट जिसको मतलब ऑलमोस्ट ट्रीट देम इक्वली, तभी उसका रिटर्न बेटर आएगा। जैसे इस बार 2021 का पेपर भी था, इट वाज अ बाउंसर फ्रॉम मनी ऑफ द स्टूडेंट्स और many of the aspirants, बट हैड दे बी नोन कि हमें सब चीज़ों को प्रॉपर वेटेज देनी है, इक्वल ट्रीट करना है, तो शायद उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर होती कंपैरेटिवली। ये कुछ मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यू वांटेड टू कन्फाइन कि फेयर ना हो चीज़ों का। एक फेयर मैं इसमें, मुझे लगता है कि नॉर्मली विच एस्पिरेंट्स हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट थिंग्स, कि वो इसलिए बहुत ज़्यादा नोट्स को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज पे रिलाई करने लगते हैं। एंड हियर आई थिंक कि सिविल स्टडी में लाइक अ मेंटरशिप, द मेंटरशिप विच सिविल स्टडी डू प्रोवाइड, इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई और मेक यू सॉर्ट आउट कि मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है, एंड हाउ आई हैव टू मूव अहेड with this limited amount of sources, जो कि time and again different people who have qualified this paper they say limited source with the proper guidance and self study, ये 3 मंत्र जो normally everybody subscribes to, ये आप भी बोलो, राइट? राइट। आई थिंक लोगों को एक सोर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए एंड फुल हार्टेडली करना चाहिए और फिर उसको फॉलो करें। एंड इफ दैट डजंट वर्क देन दे कैन स्विच टू अनदर सोर्स। बट आप हर जगह से कुछ ले रहे हैं, किसी को कुछ आधे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो देन इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब ये मैंने देखा है कि बहुत लोग इधर जाके वो उधर से वो कर लो, इधर से वो कर लो, मतलब वो सब कुछ करना चाहते हैं, बट होगा नहीं ऐसे, क्योंकि है ही नहीं पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। एक वो भी फिनोमेना है कि 16 to 17 आवर्स हम डेली स्टडी कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल ना। मैक्स टू मैक्स 7-8 आवर्स एक एफिशिएंट माइंड 7 to 8 आवर्स ही स्टडी कर सकते हैं। मेरे को भी ये पहले लगता था कि लोग 16 to 17 आवर्स कैसे स्टडी कर सकते हैं, बट 7 to 8 आवर्स के साथ पॉसिबल है, और मेरे साथ दूसरी बार हुआ है, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट। एग्जैक्टली हाँ, थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, लोग 16-17 आवर्स बैठ सकते हैं, बट इफेक्टिव जो टाइम निकलेगा उसमें राइट। इट विल बी अराउंड 7-8 आवर्स एट मैक्स। तो बिकॉज यू हैव टॉक्ड अबाउट टाइम, सो लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगेन, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल, एट द सेम टाइम टाइम मैनेजमेंट इन योर डे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। टाइम मैनेजमेंट इन डेली लाइफ, मतलब आप ब्रेक कर लीजिए 3 सेशंस में दिन को, मतलब प्री लंच और पोस्ट लंच और देन इवनिंग वाला सेशन। तो और डिफरेंट डिफरेंट चीजें करिए, जैसे एक में प्री पे कंसंट्रेट करिए, एक में मेंस में, और एक में आप अपने ऑप्शनल को वो कर सकते हैं। एक सेशन आंसर राइटिंग का जरूर होना चाहिए, जिसमें मतलब आप 2 या 3 क्वेश्चन डेली लिख रहे हो, उसको चाहे आधा घंटा लगा के लिखिए, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 7-8 मिनट वाला एवरेज आपका आ जाएगा। योर माइंड विल नीड टाइम टू थिंक, वो आइडियाज आने के लिए। अपना राइटिंग स्टाइल डेवलप कीजिए। ये स्टार्टिंग के जो मतलब प्री से बहुत पहले का स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। जब टाइम प्री के क्लोजर आ जाएगा तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शनल को स्किप करना पड़ेगा, प्री के लिए टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। बट फिर भी मतलब कंसिस्टेंटली आप एक चीज इंश्योर कीजिए कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्री क्लियर हो गया और आप मेंस के लिए बिल्कुल अंडर प्रिपेयर्ड है, तो वो रूटीन फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो कि ऑप्शनल का आपका रिवीजन ही नहीं हो रखा। जनरली कुछ लोग ऑप्शनल अपना प्री के बाद स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड है, उस समय ऐसा है कि आपको रिवाइज करनी है चीजें और इम्प्रूव करना है। आप पहला रीडिंग अपना प्री के बाद नहीं कर सकते ऑप्शनल का। तो ये टाइम मैनेजमेंट ऐसे कर सकते हैं, और ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, किसी के लिए ये वर्क करेगा, किसी के लिए ये वर्क नहीं करेगा। बट वन थिंग यू डू कि आप हफ्ते में एक दिन जरूर रेस्ट लें, संडे को, चाहे वो हाफ डे का हो। आप संडे को या सैटरडे को अपने दोस्तों के साथ जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो जरूर करें, ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा माइंड, आपको पता चले कि हफ्ता एंड हो रहा है और हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। जैसे कॉर्पोरेट में कोई जॉब कर रहा है तो उसको कैसे पता चलता है? जब उसको ऑफ मिलता है कि हाँ ये रेस्ट डे है। आप रिलैक्स कीजिए, टीवी देखना है। और एक, जैसे मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि मुझे वो फनी लगता था, तो रिफ्रेश होता है ना माइंड इन सब चीजों से। एक चीज जरूर करें डेली में, इतना बिजी कोई नहीं है ना, इतना टाइम चाहिए कि आप नॉर्मल चीजें, ऐसा कुछ नहीं। बात करें घर वालों से, मतलब आप इतनी दूर आए हुए हैं, अगर मतलब दिल्ली में प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने घर से दूर हैं, तो कनेक्ट करें लोगों से और लोगों को प्रॉब्लम बताएं कि हाँ हम ये फेस कर रहे हैं। जैसे बहुत स्मॉल एग्जांपल है कि मैं अपने ब्रदर को बताता था सारी चीजें, जब इतना गाइडेंस नहीं था। तो मैंने कहा कि एसए का पेपर है और इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए,
तो ही सेड कि यूपी बिहार से इतने लोग आ रहे हैं, नॉट एनीथिंग मतलब एडवर्स, बट उनका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल दे आर गेटिंग सिलेक्टेड। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बहुत ऑक्सफोर्ड लेवल इंग्लिश चाहिए ऐसे पेपर में, एवरेज इंग्लिश लिखेंगे तो भी मार्क्स आएंगे। तो ये सब चीजें कई बार आप किसी लेमैन से डिस्कस करें जो नॉन यूपीएससी साइड से, वो भी आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि Exactly. यूपीएससी की ही लाइन से होगा वही आपके डाउट्स क्लियर होगा, और ये बहुत बेसिक चीजें हैं। मतलब इसके लिए हम्म। पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं, फ्रेंड्स हो, ब्रदर हो, थोड़ा सा बड़ा, मतलब उस एज ग्रुप में, तो हेल्प कर सकता है। हाँ, ये सेकेंड, डिटॉक्स करने में भी हेल्प करेगा, राइट? हाँ, डिटॉक्स करने में आपका स्ट्रेस रिलीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता है एक टाइम आता है कि बस अब नेक्स्ट डे और नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप ब्रेक लें, कोई ऐसा वो नहीं है, क्राइम नहीं है ब्रेक लेना। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आप मिस आउट कर देंगे। मेरे को तो ये लगा कि जब मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा था, टाइम कम था, तो मेरा दिमाग कम डाइवर्ट हुआ इधर उधर। और सेकेंड टाइम जब मैं, मतलब मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया था इंडियन रेलवे से 1 साल का, तो मेरे पास बहुत टाइम था, तो मेरे को ऐसा हर समय इतना गिल्टी फीलिंग रहता था कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, मेरे से कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, वो फियर रहता है मन ओके। में। सेकेंडली आपका टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आई कभी कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, या मैंने केस स्टडीज पे ज्यादा टाइम दे दिया फिर, और ये मेरा स्पीड था, तो स्पीड वाज नेवर एन इशू फॉर मी। बट जो लोग के साथ स्पीड का इशू है या उनकी हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है, उनको दे हैव टू वर्क ऑन आंसर राइटिंग, मतलब डे वन से। ऐसा है, क्योंकि वो चीज वो है ही नहीं, मतलब नेगोशिएबल नहीं है। आपको आंसर राइटिंग आपकी अच्छी स्पीड में होनी चाहिए और लेजिबल होनी चाहिए, ये दो बेसिक चीजें, इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई मैंने आज तक नहीं सुना जिसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है और वो सेलेक्ट हो गया, या ओके, बट हाँ, इतना हो हैंडराइटिंग लेजिबल हो, हाँ क्योंकि इतना। समटाइम्स हमें डाउट भी होता है कि हमारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। ऑल वी नीड टू डू इज कि पढ़ने में आसानी से आ जाए, ताकि हाँ, ट्रबल ना हो। आप एक चीज सोचिए ना कि एग्जाम जो, मतलब जो कॉपी चेकर है उसके पास 100 कॉपीज है एक दिन में, और उसको गो थ्रू करना है, तो वो किस कॉपी को ज्यादा मार्क्स देगा जिसमें उसको इजीली पढ़ा जाए, उसका एफर्ट कम लग रहा है। ह्यूमन टेंडेंसी है ये। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देखेंगे या स्कूल लेवल पे सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है, यूपीएससी में भी सेम है। वही कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वही कॉपीज चेक करते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं यूपीएससी ने स्पेस से लोगों को बुला रखा है चेक करने के लिए, लोग ह्यूमंस ही हैं जो चेक कर रहे हैं। जो स्मॉल सिंपल थिंग्स हैं वो ही वर्क करती हैं, कि डायग्राम्स बनाओ, हेडिंग्स बड़ी बड़ी लिखो, आपको दिखना चाहिए कि जो क्वेश्चन में पूछा गया आपने उसको एड्रेस किया। अगर एग्जामिनर इतनी कॉपीज पढ़ रहा है और उसको एक कॉपी में दिख रहा है कि हाँ इम्प्लीकेशंस पूछे हैं और इम्प्लीकेशंस एक हेडिंग है, तो मतलब एड्रेस किया ना बच्चे ने, या जो मतलब एस्पिरेंट ने एक क्वेश्चन पढ़ा, समझा और उसको एड्रेस किया, तो उसमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। प्लस पॉइंट वाइज लिखना मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा, तो उससे टाइम भी मैनेज हो जाता है। आपको ओके। फुल सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, हेल्प करेंगे, स्पेस भी कवर अप होता है। ये सब चीजें टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, और खासकर ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल जैसे मेरा कॉमर्स ऑप्शनल था, तो ऐसा हुआ है कि मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टक हो गया, तो मैं, ऐसा नहीं है कि उस पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आधा घंटा उसी चीज को दे दिया था। एक पार्ट था वो क्वेश्चन का, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट था, मैंने वो टाइम दे रखा था कि अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, स्टेप मार्किंग है, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे जितने मिलने हैं। बट ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन को मतलब फोकस करने के चक्कर में मेरा पेपर ही 20-30 मार्क्स का छूट जाए, और बाद में मैं ये ओके। रिग्रेट करूं कि मुझे आता था, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। वो रिग्रेट कभी भी लाइफ में नहीं रहना चाहिए। 16 में और 18 में, मतलब मैं 19 क्वेश्चंस कर लेता था जीएस में, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन होता था कि एक तो छोड़ सकते हैं। देन आई रियलाइज्ड कि मैं 80 मार्क्स का पेपर, या मतलब अराउंड 60 मार्क्स का पेपर छोड़ के आ रहा हूँ। दिस ओके। टाइम आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट कि मुझे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो जीएस 1 2 3 4 में खाली एक क्वेश्चन छूटा था मेरा। ओके। 60 मार्क्स में से आप, इवन इफ यू गेट 10 to 15 मार्क्स, मतलब यू इट कैन मेक यू इनसाइड द लिस्ट एंड आउटसाइड ऑफ द लिस्ट, ये डिफरेंस हो सकता है। हाँ, ओवरऑल रैंक इम्प्रूवमेंट पे भी बहुत असर पड़ता है। बहुत ग्रुप बी फर्क से ग्रुप ए पड़ता में यू कैन एंटर डायरेक्टली। तो वी कैन टेक अवे कि यहाँ से टाइम मैनेजमेंट में इट इज मोर और लेस इंडिविजुअल स्पेसिफिक, बट कुछ पॉइंटर्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड ज्यादा नहीं है, देन यू कैन
हैव डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल। आप पॉइंट फॉर्मेट पे स्टिक कर सकते हो, आप अपनी बात को शॉर्ट में रखने की आदत डाल सकते हो ताकि कम वर्ड्स में आप सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स को वहां पर एक्सप्रेस कर सको इन योर आंसर्स। और आंसर राइटिंग आपको एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड स्टार्ट। These are the pointers if you want to manage time properly. So like what I would like to say here, like all the points which has been shared by Lakshay, I realize कि यहाँ पर एक clarity of thought बहुत ज्यादा है। Clarity चाहे वो optional के terms में हो, clarity चाहे sources के terms में हो, and I like proudly want to embrace Lakshit as our topper. तो फिर I want to ask कि Lakshit, how Civil Seli has performed in this preparation journey throughout. Uh, I think you have been associated directly or indirectly from 2016, and you just tell us how this, since 2016 till now, how Civil Seli has been something as an essential part of your preparation. तो 2016 ऑनवर्ड्स मैंने 2 प्लेटफॉर्म्स फॉलो किया था, एक इनसाइट्स और सिविल्स डेली। इनसाइट्स में क्या है कि एडिटोरियल्स वो सारे कवर नहीं करते। सिविल्स डेली में क्या है कि कुछ भी होगा एडिटोरियल वो कवर करेंगे। एंड मैंने एक पॉइंट के बाद न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़ दिया था, क्योंकि सिविल्स डेली से क्या हो रहा था कि मेरे को पॉइंट वाइज उस एडिटोरियल के मेन पॉइंट्स मिल जा रहे थे, तो मेरा एफर्ट कम लग रहा था। तो सिविल्स डेली एक करंट अफेयर्स के लिए मैं रेगुलरली फॉलो करता था। ये मेरा नोट मेकिंग का एक स्टाइल था कि मैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स फॉलो करता था rather than मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स नहीं फॉलो करता था। सेकेंडली 2016 में ओपन जब प्लेटफॉर्म था, तब 1 2 3 4 GS 1 2 3 4 के डेली क्वेश्चंस आते थे, मैं वो अटेम्प्ट करता था। पोस्ट नहीं करता था मैं प्लेटफॉर्म पे, बट बहुत लोगों के जो आंसर्स आते थे वो मैं पढ़ लेता था। और कहीं जगह मतलब सिविल डेली की तरफ से रिव्यू भी होता था, या लोग एक दूसरे के क्वेश्चंस रिव्यू करते थे, तो मैं वो पढ़ लेता था। 16 में दैट हेल्प मी। 18 में मैंने कुछ करंट अफेयर्स के लिए फॉलो किया था, आंसर राइटिंग के लिए फॉलो नहीं किया था। 20 में मैंने कांटेक्ट किया था सजल सर को, और मेरे 250 प्रोबेबल क्वेश्चंस, मतलब वो मेरे को लगता है कि काफी इफेक्टिव रहे थे, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए थे और मतलब काफी रिलेटेड टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स। मतलब मेरा काम इजी हो गया था कि मुझे वो एक था कि मैं आउट ऑफ टच हो गया था 18 के बाद, तो मुझे डर था कि मेरा करंट अफेयर्स मिसिंग है। तो 250 प्रोबेबल टॉपिक से ये थोड़ा इंश्योर हो गया कि जो टॉपिक्स मेरे से मिस हो गए इंडिविजुअल लेवल पे वो कवर अप हो गए, क्योंकि किसी प्लेटफॉर्म ने मेरे को डायरेक्टली रेडीमेड मटेरियल दे दिया था। वो टॉपिक था और 2 या 3 पेज में उसका एक्सप्लेनेशन था, तो मतलब एग्जैक्टली मैं उसमें से 250 वर्ड्स का आंसर लिख सकता था। बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत कम नहीं था, तो वो बहुत यूजफुल लगा था। टेस्ट सीरीज मैं सच बताऊं तो मैंने इतना अटेम्प्ट नहीं किया था। आउट ऑफ 12 टेस्ट आई हैड अटेम्प्टेड ओनली 4। तो वो मतलब रिलेटेड रहता है चीजें, टाइम नहीं था इस बार। वो भी था, एक इनर्शिया था कि नहीं कर रहा था मन मेरा, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो गए थे, तो मैंने इस बार वो टेस्ट सीरीज वाला कंप्लीट नहीं किया था। बस 4 टेस्ट किए थे। मेरे को एक आइडिया लग गया था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और क्या चीजें इंप्रूव करनी थी। एक एक टेस्ट मैंने रिव्यू करा लिया था हर टॉपिक का, तो मुझे बेसिक जो चीजें इंप्रूवमेंट के लिए थे वो फीडबैक में मिल गया था, एंड दैट वर्क फॉर मी इस बार। ये मेरा सिविल दिल्ली से मतलब तब से है जब से वो ओपन प्लेटफॉर्म था, और अब जब ये पेड वाली चीजें आ गई हैं तब तक का मतलब है, क्योंकि मैं पहले ही सिलेक्टेड था, तो आई वुड स्टेट क्लियरली कि मेरे को मतलब बहुत ही मिनिमम प्राइस पे वो सारी चीजें अवेलेबल कराएगी। Okay, so Civil Seli, because right now, ever since its inception, it has grown out as an ecosystem. Ecosystem मतलब यहाँ पर open platform भी है, like people have their daily current affairs for pre and mains and all the stages. They have support for all the levels of examination till prelims till interview. So it is a kind of system which has evolved. और यहाँ पर we at Civil Seli we believe कि एक learning हो collaborative हो plus guided self study हो। और guided self study में there is a like clear cut role of a mentor, which you have rightly said you have had discussions with Sajal sir about your related to improvements in your answers or like probable questions which you found almost directly and some indirectly in the main question. So I think ये जो evolving character of Civil Seli का and which has made it like an ecosystem, ये it is useful and it has shown time and again कि यहाँ पर जो भी कोई आना चाहता है like who wants to get into the real guidance, so they have all they need. And so Lakshay, it's been like you have very much clarity with everything in your thought process. I can realize you're not just only putting out words in a practical manner, but
behind that practical knowledge you are sharing with us, there is a philosophical side also. And that philosophical side, like जो wisdom है, which you carry, or which you have developed throughout your preparation journey. तो एक बार I would like to like ask you कि आप जितने भी अभी न्यू एस्पिरेंट्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एक या दो अटेम्प्ट हो चुके हैं जिनके, एंड दे आर फीलिंग कि ये काफी एक लाइक टायरिंग एग्जाम है, इसमें बहुत एफर्ट चाहिए, तो उनके लिए कुछ ऐसा हो so that they can keep up their motivation in a consistent manner the way you did. मैं डिवाइड करूंगा मैसेज। जो एकदम एंटर कर रहे हैं, दे शुड हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन देयर माइंड कि 2 या 3 अटेम्प्ट देने हैं हमें, एंड देन इफ नहीं होता तो वी विल लुक फॉर अ जॉब। मेरे बहुत सारे कजन्स या जो नोन में हैं उनको भी मैंने यही सजेस्ट किया है, उन्होंने 2 अटेम्प्ट मतलब 2 साल वेस्ट कर दिए। एंड मेरा एक फ्रेंड है जिसने मतलब he had done engineering or he got employed and was having a package of 15 lakhs. He left that job and now he has मतलब given 5 attempts and he has not got selected. तो अब वो 5 साल बाद उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कम वर्थ के लिए रह गया और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो बिल्कुल नहीं रह गया। तो आप देखें कि आपके जो 22 ऑनवर्ड्स हैं, 22 टू 25 26 तक वो प्राइम ईयर्स हैं। अगर तब तक आपको जॉब नहीं मिली ना तो उसके बाद जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट होता जाता है धीरे धीरे, और फिर आपको लगेगा कि यूपीएससी ही देते रहें। एक इनर्शिया आ जाता है। 4th 5th अटेम्प्ट में हैं सक्सेस स्टोरीज हैं, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत रेयर हैं। आप ये नहीं देखेंगे, जनरली 1st 2nd 3rd अटेम्प्ट ये होता है। 3rd अटेम्प्ट तक काफी सिलेक्शन हो जाता है जो मेन सिलेक्शन है। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखें। जिन लोगों के अटेम्प्ट हो गए हैं, 4th है 5th है, एक अटेम्प्ट नेक्स्ट अगर आप मतलब दिल से दें, पूरा एफर्ट लगा के सब कुछ छोड़ के एक एक किसी टॉपर को फॉलो कर लें। ऐसा नहीं है मेरे को ही फॉलो करें, किसी को भी, बट उसको एंटायरली फॉलो करें, ठीक है? तो दैट कैन वर्क फॉर। और फियर फैक्टर छोड़ दें और ये सोचें कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद और नहीं देंगे, देन वी विल मूव ऑन। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं। मैंने भी ये अटेम्प्ट इसी स्ट्रैटेजी से दिया था कि मैं आई विल बी हैप्पी इन रेलवे अकाउंट्स ऑल्सो। मेरे को ऐसा वो नहीं था कि मैं दूंगा। और तो वो आप जब डिटैच कर लेंगे ना अपने आप को ये पूरे उस फिनोमिना से, ये विशियस साइकिल है। एक बार आप ट्रैप हो जाते हैं, कंटिन्यूसली आप 5-6 साल इसी में ट्रैप्ड रहते हैं, तो उस विशियस साइकिल से अपने आप को डिटैच कर लें, तो फिर माइंड बहुत फ्री हो जाता है। ऐसे में आपको क्या चाहिए? आपका माइंड क्रिएटिवली थिंक करे अलग अलग डायमेंशन में। अगर वो डरा हुआ है ना माइंड, तो वो नहीं सोचेगा। आपको कितनी भी अच्छी मेंटरशिप मिल जाए, कितनी भी अच्छी गाइडेंस मिल जाए, मोर देन फिजिकल थिंग मेंटल थिंग भी है ये। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे को बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी जब मैं कॉन्टिन्यूसली सिटिंग कर रहा था। आपकी हेल्थ इशू डेवलप होना चाहिए, हो जाता है, किसी को मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें। और वो ब्रेक लेना मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो मेंटल बर्नआउट ना हो जाए कि आप इतने प्रिपेयर कर रहे हैं और सडनली आपको ऐसा लगे कि अब आगे हो ही नहीं पा रहा, मेरे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा। वो पॉइंट आता है और सबके साथ आता है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपर क्लेम करे कि उसके साथ नहीं आया। मेरे साथ तो बार बार आया, हर अटेम्प्ट में आया। इस अटेम्प्ट में मतलब एग्जैक्टली ये हो गया था कि आई विल नॉट गिव मेंस अगेन। मैं बहुत डिसाइड था क्योंकि वो 5 दिन का इट इज लाइक अ टॉर्चर, इजी नहीं है। मतलब वो बहुत रिग्रेस है कि 2 दिन ठंड में जाके आपको 3-3 घंटे लिखना है, मतलब एक ही दिन में 2 शिफ्ट के लिए। बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है, एग्जॉस्टिव है। तो आप अपने आप को बर्न आउट नहीं करिए ना। यूपीएससी नहीं हुआ तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मतलब 20s to 30s में है आप, अभी आपकी मोर देन हाफ लाइफ स्पैन बचा है। कुछ और करिए। ऐसा नहीं है कि सोशल सर्विस यूपीएससी से ही होती है, यहाँ से कम होगी, आप प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा कर पाएंगे। आप अच्छे से अर्न कर लिए, आप इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हैं। ऐसा नहीं है कि यू आर अर्निंग और अपना एक जॉब आया है तो आप सोशल सर्विस नहीं कर रहे। दैट इज ऑल्सो सोशल सर्विस। मतलब यू आर एडिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, दैट इज ऑल्सो सोशल सर्विस। सोशल सर्विस ये नहीं है कि जस्ट नॉन प्रॉफिट बेसिस पे आप तो अपना यानी स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं, आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, आप किसी एनजीओ से एसोसिएटेड हैं, दैट इज ऑल्सो सोशल सर्विस। ये लोगों के बहुत माइंड में है कि हमें जनता के लिए करना है, बट जस्ट बाय हैविंग पावर। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी आप ठीक है, लाइक
हाँ, You are स्मॉल adding a broader बेसिस स्मॉल perspective. कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं सोसाइटी को, अगर आपका इतना ही है कि सोशल वर्क करना है। हाँ, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है एंड आई थिंक इसमें एंड लाइन कुछ ऐसी है कि इफ यू आर पुटिंग इन सम एफर्ट्स फॉर दिस पेपर, तो एक बार अच्छे से करके इस अटेम्प्ट को दे दो, 1 या 2 अटेम्प्ट व्हाटएवर यू डिसाइड, बट उसमें यू शुड फील कि मेरा जितना मैं कर सकता था आई हैव डन, नाउ लेट द रिजल्ट कम आउट। अगर होता है ठीक है, अदरवाइज डिटैच योरसेल्फ। और यहाँ पर यू हैव आल्सो हाइलाइटेड indirectly a teaching from Gita from Krishna. So thanks for the insight. So everyone, this was Lakshya Kumar, and he shared all the insights and all the practical sides for the preparation of this examination. And I really feel that we have further interactions jahan par he can explain in detail about the prelims and mains related strategy and essay related strategy, so that it will be really helpful for each and every aspirant out there. So thank you, Lakshya. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.